السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم جواب شکوہ کو سٹارٹ کریں گے، اس کی انگلش میں ایکسپلینیشن کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو سمجھیں گے کہ اقبال نے اس نے ہمیں بتانا کیا شروع کیا۔ تو اب ہم بغیر ٹائم ویسٹ کیے جو ہے وہ اسٹینزا نمبر 1 کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ Words spoken from the heart never fail to have effect۔ مطلب دل سے جو نکلی بات ہوتی ہے وہ ہمیشہ اثر کرتی ہے۔ آپ کے پاس اوپر اردو ٹرانسلیشن ہے، آپ اسے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اقبال یہاں ایک جو ہے وہ ہمیں یونیورسل ٹروتھ بتا رہے ہیں کہ جب لفظ سچے دل سے، ایک اچھی انٹینشن سے اور ہمارے جو ریئل ایموشن کے ساتھ نکلتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو اگنور نہیں کر سکتی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بات صرف پوئٹری نہیں ہے، مطلب ریئل لائف کا ایک رول بھی ہے کہ اگر ہمارا جو میسج ہے، ہمارا جو انٹینشن ہے وہ کلیئر ہوگی یا جینوئن ہوگی تو اللہ اس میں قوت ڈال دیتے ہیں اور اس کا جو ہے وہ بہت زیادہ لاسٹنگ امپریشن ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بات کی جائے تو اس لائن کا یہی مطلب ہے کہ اگر پیور ہارٹ سے جو ایک چھوٹا سا جملہ بھی نکلے تو وہ بہت پاورفل میسج بن جاتا ہے۔ Sacred and pure their origin on lofty heights, their sides are set۔ ان کا اصل جو ہے وہ پاک ہوتا ہے، قدسی الاصل ہے، اور ان کا جو مقام ہوتا ہے وہ بلند ہوتا ہے۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ دل سے نکلے جو لفظ ہوتے ہیں نا وہ ایک عبادت جیسے ہوتے ہیں۔ ان کا اوریجن جو ہوتا ہے وہ پیور ہوتا ہے، مقدس ہوتا ہے، نیت صاف ہوتی ہے، جذبہ جو ہے وہ سچا ہوتا ہے۔ جو لوفٹی ہائٹس کا مطلب ہے بلندی، گریٹنس، یعنی یہ لفظ آلریڈی ایک ہائی اسپرچول لیول پر پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ They have no wings and yet they have power to fly۔ ان کے پاس پر نہیں ہوتے پھر بھی یہ اڑتے ہیں۔ یعنی اقبال یہاں پہ میٹافور یوز کر رہے ہیں ونگز کو، یعنی ریسورسز کو، پاور کو، ٹولز کو۔ یعنی اگر بات سچ ہو تو اس کو کسی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، کسی پاور کی ضرورت نہیں ہے، کسی ریسورسز کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی اوپر اٹھ جاتے ہیں۔ اگر ہم یہاں پہ کوئی بھی ریئل لائف ایگزامپل ہیں تو کبھی کبھی کسی سمپل سی دعا یا سمپل سی بات ہماری جو ہے دل کو ٹچ کر جاتی ہے، کیونکہ وہ کیا ہوتی ہے، سچی ہوتی ہے، وہ دل سے نکلی ہوئی ہوتی ہے۔ They rise from the dust pierced through the sky۔ یہ خاک سے اٹھتی ہے اور آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ مطلب ڈسٹ، خاک، انسان کا اصل ہمیشہ خاک ہے، زمینی حالت۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ ہماری فریاد زمین سے اٹھتی ہے مگر اللہ کی قدرت سے وہ آسمان کو چیر دیتی ہے۔ ہاں، یہ انسان کی اسپرچل ویلیو کو ہائی لائٹ کر رہی ہے کہ ہم مٹی سے بنے ہیں مگر ہماری جو دعا ہے وہ آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ So headstrong and insolent was my love, so much on mischief bent۔ میری محبت اتنی ضدی اور بے باک تھی، شکایت سے رکتی نہیں تھی۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ ان کے دل میں جو پیار تھا، امت کے لیے پیار تھا، اللہ سے پیار تھا، وہ اتنا سٹرونگ تھا کہ وہ چپ نہیں رہ سکتے تھے، اس لیے ان کی جو شکایت تھی وہ بولڈ لگتی ہے۔ مطلب شکوہ میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اقبال نے کیسے ورڈ یوز کیا اور ان کی وجہ سے جو ان پہ بہت زیادہ کریٹیسزم بھی ہوا تھا۔ یہ لائن بتاتی ہے کہ ان کی جو کمپلینٹ ہے ان کی لیو انٹینسٹی کو شو کر رہی ہے۔ So outspoken my plan, it tore through the firmament۔ میری فریاد اتنی سیدھی اور دردناک تھی کہ آسمان کو چیر گئی۔ آؤٹ اسپوکن مطلب سیدھی اور ڈائریکٹ، پلان فریاد، شکایت، فرمامنٹ جو آسمان کو قابل۔ یعنی اقبال کی آواز اتنی رات تھی، اتنی ریئل تھی، اتنی درد بھری تھی کہ وہ آسمان کے اسپرچول سسٹم تک پہنچ گئی۔ اور اس لائن کا جو ہے وہ ایک اور میسج یہ ہے کہ جو ریئل پین ہوتا ہے وہ آلویز ریچز دا ڈیوائن، وہ خدا تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ تو اقبال یہاں پہ اس پورے اسٹینزا میں اقبال کا جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے لفظ سچے ہیں، آپ کی انٹینشن پیور ہے تو آپ کے پاس ایک پاور ہے، اس پاور کو کہتے ہیں اسپرچول پاور۔ اوکے، تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں اسٹینزا نمبر 2، اس کی فل ایکسپلینیشن۔ The aged world of heaven heard, here there is someone, somewhere said he۔ آسمان کے پرانے خوبوں میں آواز سنی کہ کہیں کوئی بول رہا ہے۔ مطلب اقبال نے ایک جو سیلیسٹیل سین کریٹ کیا ہے، جیسے ہیونز خود حیران ہو گئے ہیں کہ کون نیچے سے جو ہے وہ کوئی آواز دے رہا ہے، کوئی آواز بول رہا ہے جس میں درد ہے، جذبہ ہے، ٹروتھ ہے، اور اسے ایک ان یوزول سی انرجی بنا رہے ہیں۔ مطلب درد اور سچ جب مل جائے تو پورا جو اسپرچول سسٹم ہوتا ہے وہ الرٹ ہو جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کون بول رہا ہے جس کی آواز یہاں تک پہنچ گئی۔ The planet spoke on this ancient height, someone must be۔ زمین نے کہا اس پرانے آسمان پر کوئی ضرور ہوگا۔ یہاں ارتھ مطلب پلانٹ کو ایک لیونگ بینگ کی طرح دکھایا گیا ہے، یعنی جو آواز اٹھی ہے وہ اتنی سٹرونگ تھی کہ جو مطلب دھرتی ہے اس نے بھی محسوس کیا کہ یہ کوئی آرڈنری آواز نہیں ہے، کسی بے چین انسان کا درد ہے۔
Not here, said the moon. It must be someone from the earth below. चांद ने कहा यहाँ कोई नहीं, ये आवाज जमीन से आ रही है। चांद का जवाब एक सिंबॉलिक ट्रुथ है कि इंसान की जो सच्चाई है, उसकी फरियाद जो है वो सबको सुनाई देती है, सिर्फ अल्लाह से छुप नहीं सकती। मून यहाँ विटनेस बन रहा है कि शिकायत आसमान की नहीं है, बल्कि एक इंसान की दर्द की है जो आसमान तक पहुंच गई है। Spoke the Milky Way. It must be someone hidden. We don't know. मिल्की वे ने कहा कोई मखलूक छुप कर रो रही है और हमें नहीं पता, या फरियाद कर रही है, हमें नहीं पता। मिल्की वे यानी सितारों की गैलेक्सी भी कंफ्यूज है कि शिकायत इतनी इंटेंस है कि सेलेस्टियल जो वर्ल्ड है, मतलब ऊपर हेवन प्लेनेट, सबको लगता है कि कोई लूटा हुआ बंदा या कोई टूटे हुए दिल वाला जो है वो अपना केस लेकर ऊपर आ रहा है। जैसे इकबाल ने शिकवा में शिकवा किया था कि हम ही हैं, हम ही उम्मत ने तुझे तेरा नाम पुकारा, तेरे जानने वाले कोई और तेरा नाम नहीं पुकारता। तो उस फरियाद को कह रहे हैं कि वो ऊपर तक पहुंच गई है। Only the gatekeeper of Eden did some of my plan recognize. सिर्फ जो जन्नत का दरबान था उसमें मेरी शिकायत को वो पहचान सकता था। सिर्फ एक फरिश्ते ने पहचाना ये शिकायत, क्योंकि वो उसने जब इंसान को देखा तो उसे पता चला कि ये तो पहले जन्नत में रहता था और इसे यहाँ जन्नत से निकाला गया है। कि इंसान की जो दर्द भरी आवाज है वो अपनी असल को याद दिला देती है कि हम मिट्टी के हैं, लेकिन हमारी रूह का कनेक्शन क्या है, जन्नत से है। And understood that I was the man thrown out of paradise. और उसके बाद मुझे ये समझ आई कि उससे ये समझ आई कि मैं वही आदमी हूँ जो पैराडाइज से निकाला गया हूँ। इकबाल यहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का रेफरेंस दे रहे हैं कि इंटायर ह्यूमैनिटी की एक ही शिकायत है, इंसान का जो एंशिएंट ग्रीफ है वो पुराना दर्द जो आदम को भी था कि हम जन्नत से दूर हो गए हैं। तो इंसान का दर्द जो है पुराना भी है, असली भी, और रब से जुदा भी नहीं है। तो इस जो स्टैंजा का थीम है वो ये है कि इंसान का दर्द आसमान तक पहुंच जाता है। इफ यू आर डूइंग समथिंग विद द प्योर इंटेंशन तो वो अल्लाह तक पहुंच जाएगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी अगर इंटेंशन क्लियर है, प्योर है, तो आप जो चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं स्टैंजा नंबर 3 की। इवन टू द एंजल द वॉइस केम एज अ कंप्लीट सरप्राइज। फरिश्तों के लिए भी ये आवाज बहुत हैरानी का सबब बने। आप ऊपर उर्दू ट्रांसलेशन भी देख सकते हैं, मैं सिर्फ इंग्लिश की कर रही हूँ। इकबाल यहाँ दिखाते हैं कि इंसान की शिकायत इतनी अनएक्सपेक्टेड थी सेलेस्टियल बीइंग के लिए, मतलब हेवन के जो रेसिडेंट थे उनके लिए, कि उन्हें भी शौक लगा। यानी इवन के जो दुनिया के स्पिरिचुअल रूल्स को समझते हैं वो भी हैरान हो गए कि एक छोटा सा इंसान ऐसा बोल्ड और पैशनेट हो सकता है, मतलब उसके जो वॉइस है वो यहाँ तक पहुंच जाएगी। नो वाज अ मिस्ट्री अनवील्ड टू अदर ड्वेलर्स ऑफ द स्काई। और बाकी आसमान की मखलूकों के लिए भी ये मिस्ट्री रिवील नहीं हुई। इकबाल यहाँ शो कर रहे हैं कि इंसान की बोल्डनेस, स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है वो हेवन के लिए भी सरप्राइजिंग है। ह्यूमन पोटेंशियल जो है वो बहुत ज्यादा है और उसके बहुत अनप्रिडिक्टेबल एस्पेक्ट हैं जो इंसान खुद नहीं जानता जब तक वो कोशिश ना करे। They wondered could celestial height have become the aim of man's striving? फरिश्ते यहाँ हैरान है कि इंसान का गोल जो है वो अब आसमान तक पहुंचना हो गया। इकबाल कहते हैं कि इंसान जो जमीन से मतलब मिट्टी का था, उसका जज्बा, उसकी जो डिटर्मिनेशन थी वो अब हेवनली लेवल तक पहुंच गई है। मतलब इंसान के स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल को हाईलाइट कर रहे हैं कि हम छोटे हैं, मगर अगर हमारी नीयत और हमारी हिम्मत सही है, हमारा पोटेंशियल है, तो हम ऊपर उठ सकते हैं। Could this speech of dust have learned the art of flight? ये मिट्टी का जरा मतलब अब उड़ान का फन सीख गया है। यहाँ एक बार एक्सप्रेस करते हैं ह्यूमिलिटी और अमेजमेंट को। इंसान जो अर्थ से आया अब सेलेस्टियल लेवल तक अपने आवाज को पहुंचा सकता है। These earth dwellers who little of manner do they know? ये जमीन के रहने वाले मैनर्स का कितना ध्यान नहीं रखते। इकबाल जब आप सार्केस्टिकली पॉइंट आउट करते हैं कि ह्यूमन बोल्ड और चीकी है, मतलब इनके अंदर जो है वो मैनर भी हैं, लेकिन कभी कभी ये मैनर के अंदर रहते रहते कोई ऐसी बात कर जाते हैं जो आसमान तक पहुंच जाती है। यानी इंसान अपने एरोगेंस और बोल्डनेस में अदब भूल जाता है, मगर स्पिरिचुअल एम्बिशन और सिंसियरिटी के लिए वो पूरी एनर्जी को इन्वेस्ट करता है। How cheeky and insolent are these inhabitants of region down below? ये जमीन के रहने वाले कितने बेबाक और जिद्दी हैं। इकबाल यहाँ पे एम्फसाइज करते हैं ह्यूमन कॉन्फिडेंस और बोल्डनेस। हम छोटे हैं, मिट्टी से बने हैं, पर जब सच्चाई और दर्द का एक्सप्रेशन हो तो हम अनप्रेडिक्टेबल और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इसका मतलब है करेज एंड सिंसियरिटी कैन मेक द स्मॉलेस्ट ह्यूमन रीच द हाईएस्ट रिगार्ड्स। हमारे अंदर करेज होना चाहिए और हमारे अंदर सिंसियरिटी होनी चाहिए, और तो हम कहीं भी पहुंच सकते हैं।
ओके जी, तो अब हम देख लेते हैं स्टैंजा नंबर 4 की एक्सप्लेनेशन. He even rails against Allah. He has become so proud. ये इंसान अब अल्लाह के खिलाफ भी शिकायत करता है, उसका घमंड बहुत ज्यादा बढ़ गया है. इकबाल यहाँ इंसान के एरोगेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस को हाईलाइट कर रहे हैं कि इंसान की जो शिकायत है वो सिर्फ दुनिया से नहीं है, वो अल्लाह के सामने भी बोल्ड है, लेकिन ये बोल्डनेस इंटेलेक्ट और नॉलेज का कॉन्फिडेंस है, ना कि ईगो और नफरत से. Is he the same Adam before whom the angel bowed? क्या ये वही आदम है जिसके सामने फरिश्ते भी झुके थे? एक बार यहाँ पास्ट और प्रेजेंट का कंट्रास्ट दिखा रहे हैं कि वही इंसान जो एक वक्त में ओबीडियंट और हम्बल था, अब अपनी नॉलेज और बोल्डनेस के साथ ईगो को फील कर रहा है. ये लाइन हमें बताते हैं कि नॉलेज और पावर का मिस यूज इंसान को क्या करता है, एरोगेंट बना देता है. He knows about things, their quantity and quality. ये इंसान चीजों का इल्म रखता है, उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी का. एक बार यहाँ एम्फसाइज करते हैं इंसान की नॉलेज का लेवल हाई है, उसको दुनिया जिंदगी का अंदाजा है, वो साइंस को, लर्निंग को, फैक्ट्स को समझता है. इसी वजह से वो अपनी शिकायत को बहुत कॉन्फिडेंटली कह रहा है. Those he knows but nothing of the secret of humility. लेकिन इंसान इनकी सारी का राज नहीं समझता. एक बार कहते हैं कि इंसान चाहे कितना भी स्मार्ट या पावरफुल हो जाए, अगर वो ह्यूमिलिटी नहीं रखता तो वो अपनी असली पोटेंशियल को नहीं समझ पाता. यानी नॉलेज और बोल्डनेस के साथ अदब और ह्यूमिलिटी जरूरी है. The power of speech men always probably plain part of the way of speaking, therefore ignorant. इंसान की जो बोलने की ताकत है उसे वो समझ नहीं पाता, इसलिए वो जो है वो इग्नोरेंट कहलाया जाता है. एक बार यहाँ एक डीप ऑब्जर्वेशन करते हैं कि हमारी स्पीच नेचुरल है, मगर उसका असल एसेंस और अदब समझना बहुत कम लोग करते हैं. कितनी जो है वो यहाँ सच्ची बात है कि इंसान बोलता है लेकिन उसकी बोली हुई बात की असली स्पिरिचुअल ताकत को नहीं समझता. कभी कभार हम कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो अगले बंदे की जिंदगी को बर्बाद भी कर सकता है और आबाद भी कर सकता है. तो इस स्टैंजा का जो रियल थीम है वो ह्यूमन एरोगेंस है और ह्यूमिलिटी है, कि नॉलेज विदाउट ह्यूमिलिटी इज लाइक विंग्स विदाउट एयर, इट कैन नॉट ट्रूली फ्लाई. अब हम स्टैंजा नंबर 5 को एक्सप्लेन कर लेते हैं. स्पोक द वॉइस, योर टेल इज इंडीड फुल ऑफ सारो. आवाज ने कहा तुम्हारी कहानी सच में दर्द भरी है. इकबाल यहाँ अल्लाह की रहमत और अंडरस्टैंडिंग को दिखाते हैं. ये दिखाते हैं कि इंसान का दर्द सच्चा है और अब इसे महसूस कर रहे हैं, यानी इंसान का एक्सपीरियंस और शिकायत जेन्युइन है और उसको आसमान ने भी महसूस किया. इसका मतलब है गॉड लिसन्स टू द क्राई ऑफ द हार्ट, नॉट द वर्ड्स ऑफ द लिप. मतलब जो खुदा है वो हमारे हार्ट की जो आवाज है, फरियाद है, उसको सुनता है. हमारे लिप्स से जो वर्ड्स निकल रहे होते हैं उसे नहीं देखता. योर टीयर्स ट्रेम्बल एट द ब्रिम एंड आर रेडी टू फ्लो. तुम्हारी आंसू भी बहुत जो है वो बहने के करीब है. इकबाल पोइटली करीब बताते हैं कि इंसान का गम और पेन अब ज्यादा इंटेंस है, यानी शिकायत की इंटेंसिटी लेवल बहुत हाई है. मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट इमोशनल क्लाइमेक्स आ गए. योर क्राई ऑफ लैमेंट द स्काई हैज स्ट्रेंथ. हमारी फरियाद इतनी तेज है कि पूरा आसमान गूंज उठा है. एम्फसाइज करें वही हमारे इमोशनल इम्पैक्ट को, हमारी स्पिरिचुअल रीच को, कि हमारी आवाज जो है वो बहुत इसमें बहुत पोटेंशियल है. What cunning your impassioned heart has learned. तुम्हारे जज्बाती दिल बहुत चालाक है और मतलब इंटेलेक्ट सीख गया है. एक बार अप्रिशिएट करते हैं इंसान के जो एक्सप्रेशन है, कि हम कभी कभी ऐसे ही कोई चीज एक्सप्रेस करते हैं कि सामने वाले के दिल में वो लग जाती है बात. ऐसे ही इकबाल की जो शिकवा था वो अल्लाह के दिल को लग गई. यानी इंसान जो है वो अपना दर्द इतनी स्मार्टली और इतनी मैनरिज्म के साथ एक्सप्रेस करे कि शिकायत भी ऐसे लगे कि प्रेज की जा रही है, दुआ की जा रही है. योर टाइम सो एलोक्वेंटली यू वर्क योर प्लान. तुमने अपना वक्त बहुत खूबसूरत तरीके से यूज किया अपने प्लान को एक्सप्रेस करने के लिए. इकबाल दिखाते हैं एक्सप्रेशन भी एक आर्ट है. इंसान अपनी शिकायत को लॉजिक से, टाइमिंग और लैंग्वेज के साथ जो परफेक्ट बनाए. यू मेड इट साउंड लाइक प्रेज टू टॉक ऑन इक्वल टर्म विद अस. हमने जो है वो ऐसे अलग अलग से बात की. ह्यूमन एडॉप्सिटी की बात हो रही है, मास्टरी ऑफ एक्सप्रेशन की बात हो रही है. तो व्हेन द हार्ट क्राइज विद सिंसियरिटी इवन द हेवन रिस्पोंड एज इफ इन डायलॉग. कि इकबाल की इस बात को आसमान ने महसूस किया, अब वो जवाब देंगे.